नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास शख्सियत से। We are very honored and privileged to have been joined by the Secretary Ayush Padma Shri Vaidya Rajesh Kotecha जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद निधि जी। थैंक यू सो मच एंड फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। सो शुरुआत करूंगी मैं आपसे ये जानकर कि हाउ वुड यू टर्म द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसे कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि उसमें योग भी है, सिद्धा भी है, आयुर्वेद भी है एंड यूनानी भी है, होम्योपैथिक भी है। तो आप कैसे उसको एक संगम की तरह देखते हैं? हाउ डू यू एनकम्पस ऑल ऑफ दिस? आप देखिए, इसको आयुष मिनिस्ट्री है। इट इज़ दी वन ऑफ इट्स काइंड बिकॉज not so many countries have a separate federal ministry for the traditional medicine. This is very unique to India. Only Sri Lanka has a federal ministry level. No other country has federal ministry. Recently, we were able to, with the help of Ministry of Education, we were able to get this, this defined Ayush word. Earlier, it was used as an acronym. But if you look at that, Ayush is a Sanskrit word. It is denoting the life. Ayush means Ayushman Bhava. Ayush means the traditional Indian medicines like Ayurveda, Siddha, Unani, Yoga, naturopathy, and homeopathy. Because homeopathy is not traditional Indian medicine, and with its scientific advancements is Ayush. So this is like Ayush is having so many traditional medicines. You named it, Ayurveda, Siddha, Unani. They are all having almost same principles. It all came from Indian roots of Vedas. Even Sovarikpa, we know that it is a Himalayan medicine. It has been practiced since from the extreme north part of Himalaya to extreme eastern part of Himalaya, and it is practiced in almost 5,000 kilometer stretch, including Tibet also, and largely it is practiced in the Himalayan regions. So Sovarikpa is also coming from Ayurveda. Unani has a roots, all we have common roots. So Ayurveda, Siddha, Unani, Sovarikpa, naturopathy and homeopathy, all these come under the Ayush ministry. What are the measures that have been taken by Ayush for a healthier India since we are battling a pandemic, sir? Ministry of Ayush per se, we have a different mandate. One of the prime mandate is public health, and as our National Health Policy 2017 also mentions that Ayush should be brought into mainstream for the larger good of public, because of it has a unique kind of identity for providing positive health and promotive health. So whenever we talk about health, usually we talk about medicine or treatments or cure. If we talk about hospitals and big infrastructure and then having to create different beds, etc. But then usually we tend to forget about how to keep a person healthy. So these sciences, primarily Ayurveda and yoga, these sciences have a very simple prescriptions, very simple methodology of keeping a person healthy for long period of time. So Ministry of Ayush, under this National Ayush Mission, we have a centrally sponsored scheme. So we work with the states, and National Ayush Mission, we have created a lot of ecosystem. Such ecosystem you have mentioned about health. So we have created an ecosystem with the states in the terms of Ayushman Bharat health and wellness centers, more than 5,000 plus. We have made it of 12,500. We have created 50 bedded 104 hospitals of Ayush, integrated hospitals of Ayush. We were also able to work with Ministry of Health under National Health Mission, and there is a 26,000 co-located facilities across the country where Ayush physicians is available in PSCs and CHCs along with the allopathic medicine. So these Ayush physicians are actually providing not only healthcare services, not only medical services, but also providing people the understanding of how to stay healthy. So how to stay healthy is another area.
There is another vertical. What Ministry of Ayush did is, with the, we all know that because of initiation of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, since this was the seventh year of Yoga Divas. International Day of Yoga. So because of this International Day of Yoga and its popularization across the world, our country got immensely benefited. This year we have a self-reported data of 16 crore people have participated in IDY. Last year it was 13 crore. Before last year it was 9.5 crore. So you can see scaled up manner people are the participating. trajectory is going up. Absolutely. Yes. And yoga entered into a person's everyday life, and there are so many evidences here, experiential evidences and evidences based on the scientific methodologies, that yoga helps us, not only physically but also keeping us healthy spiritually and mentally. So yoga has contributed a lot to our country people to stay healthy. We have a lot of such experiences into COVID times also. Yes. एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा हेल्थ के 3 मायने होते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रमोटिव, और आपने योगा की बात की. सर, मैं कहना चाहूँगी यहाँ दैट ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मगर देखा जाए तो योग हैज़ बीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया. ही इज जस्ट ब्रॉट इन द कल्चर ऑफ इंडिया and taken it abroad, which is really, really commendable. But पहले अगर देखा जाए तो marriages में योग, even having children was considered yoga. Yoga means union. So everything in life, whether I'm sitting and talking to you, this is a part of my work, this is also yoga. So if we think of that traditional yoga, आपने कई उसमें और verticals दिए हैं. I think last year your theme was yoga for heart. इस तरह से भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं आयुष मंत्रालय में. उन प्रयासों के बारे में आप हमें बताएं. जैसे आपने सही कहा कि प्रत्येक वर्ष योग के साथ कोई एक थीम हम जोड़ते हैं. जैसे लास्ट ईयर योग फॉर हार्ट केयर था, उससे पहले योग फॉर डायबिटीज़ था, इस वर्ष योग फॉर वेलनेस है. और ऐसे हम क्या करते हैं कि एक थीम को लेकर के उस पर वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं, शोध करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उसको बहुत लार्ज स्केल पर आईसी एक्टिविटी करते हैं, पब्लिक में उसको पार्टिसिपेशन करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते हैं. जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको कि पिछले वर्ष योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक माई लाइफ माई योग कंपटीशन करी, और उसमें वीडियो कंपटीशन थी, एंड इट वाज द बिगेस्ट सच वीडियो कंपटीशन इन द सोशल मीडिया. हमें हज़ारों वीडियो मिले, लोगों ने अपने वीडियो लिए 2 मिनट के कि वो योग करते हैं, फिर योग में उनको क्या लाभ हुआ. इट वाज ए बिग सेंसिटाइजेशन. इस प्रकार के कार्य भी करते हैं, न केवल साइंटिफिक पब्लिकेशंस और साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन कैसे लोगों के पास उसको पहुँचे. जैसे हम एक योग विलेज का हम एक कार्यक्रम करते हैं कि एक गांव में, छोटे से गांव में यदि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति भी योग करता है तो इसको हम योग विलेज की घोषणा करते हैं. ऐसे बहुत सारे योग विलेज हमने बनाए. तो ये योग के साथ आयुर्वेद के माध्यम से भी हम ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं. आयुर्वेद में भी प्रत्येक वर्ष एक थीम हम आयुर्वेद के साथ जोड़ करके उसको प्रोपेगेट करते हैं. तो पिछले वर्ष आयुर्वेद को भी हार्ट केयर के साथ जोड़ा था, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री की एक पोर्टल है, हमारे रिसर्च काउंसिल का पोर्टल है, एनीबडी कैन टाइप ऑन गूगल आयुष रिसर्च पोर्टल. 31,000 पब्लिकेशंस वहाँ हमने रखे हुए, 31,000 पब्लिकेशंस ऑफ योग एंड आयुर्वेद. बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, अभी पिछले दिनों WHO के DG ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आकर के उन्होंने घोषणा करी कि हम भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करेंगे. तो इट इज़ हैपनिंग नाउ, हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं. तो इस प्रकार के कार्य बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं. आयुष मंत्रालय का जो अलग अलग काम है उसमें पब्लिक हेल्थ के सिवा एजुकेशन भी है, उसके साथ रिसर्च भी है, उसके साथ रेगुलेशन भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशन. हम बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं. So you're talking about pluralistic wellness in other words. Pluralistic wellness, absolutely. So 2020, the pandemic, India and the world today are just looking for tulsi, giloy, whatever you have in your kitchen shelves, these kind of traditional herbs. You mentioned traditional wellness. What would you like to say to this? न केवल आयुष मंत्रालय लेकिन पब्लिक एट लार्ज, उन्होंने जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया उसको हमने एक स्टडी भी किया. हमने क्या किया कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया थ्रू एन एप्लीकेशन आयुष संजीवनी. उसमें 1.5 मिलियन डाउनलोड हुआ कुछ ही दिनों में, और 1,47,00,000 डाटा सेट्स मिले, लोगों के रिस्पॉन्सिव मिले. आपने कहा कि गिलोय अश्वगंधा को लोग सर्च करते हैं. हमारा जो सेक्टर है उसका जो साइज़ है वो 45 to 55% बढ़ा 1.5 साल में.
मतलब सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, Correct. इट वेंट अप लाइक दिस। कुछ प्लांट्स में तो जैसे च्यवनप्राश है 700% बढ़ा, अश्वगंधा का एक्सपोर्ट है 4.5 गुना बढ़ा। अश्वगंधा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट for, सेलिंग ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट इन यूएस। Correct. टॉप 3 में से अश्वगंधा है। ये रातों रात नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सब लोगों ने मिलकर एफर्ट किया। आयुष मिनिस्ट्री ने भी 126 स्टडीज़ किए अलग अलग, और उन 126 स्टडी को अलग अलग डिज़ाइन के किए, नॉट ओनली रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, बट प्री क्लिनिकल किए, इन विवो इन विट्रो स्टडीज़ किए, डॉकिंग स्टडीज़ किए। इट्स नॉट ओनली मिनिस्ट्री बट विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स जोधपुर, केजीएमयू लखनऊ, दत्ता मेघ इंस्टीट्यूट वर्धा, नागपुर मेडिकल कॉलेज, इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। बट व्हाट इज़ द आउटकम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अणु तेल को हमने कहा कि आप यहाँ नाक में लगाइए, एंट्री पॉइंट पर लगाइए, तो इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस और मे बी इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो बाद में हमने पाया हेमस्टर मॉडल पर डीबीटी के एक इंस्टीट्यूट ने, तिस्टी ने हमें मदद करी, प्रोफेसर मधु दीक्षित इज ए वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, उन्होंने ये काम किया और हमें पता चला कि एंट्री पॉइंट पर अणु तेल लगाते हैं तो 95% वायरल लोड कम हो जाता है। अच्छा। एंड ए पर्सन इज हैविंग लेस चांस ऑफ गेटिंग ए फुल फ्लेड इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। ऐसे बहुत सारे परिणाम मिले। हमें कुछ मेडिसिन पर काम हुआ, जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि आयुष का मतलब इम्यूनिटी की बात होती है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुष ने कोविड के ट्रीटमेंट पर भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। हमारा दिल्ली में ओलिडा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वहाँ कोविड केयर सेंटर है, वहाँ 550 से ज़्यादा पेशेंट आए, 99% लोग वहीं ठीक हो गए। उसमें से 94% लोगों ने सिर्फ आयुर्वेद की दवाई ली, आयुर्वेद और योग इंटरवेंशन किया, और 1% जिनको रिफ़र किया उसमें से भी देयर इज़ नो मोर्टालिटी। सेकंड वेव में हमें इतने सारे में से एक व्यक्ति की डेथ हुई बाद में रेफरल के बाद। तो इट्स ऑलमोस्ट 100% फुल प्रूफ। इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं हुआ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि ये जो विधाएं हैं, इन्होंने हमारे देश में कोविड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा। लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है। ऑफ कोर्स इसमें शायद इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे आयुष 64 हमने एक खोजा था, आयुष 64 मेडिसिन, उसको हमने डिसेमिनेट भी किया, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में भी आया। वो कितनी सस्ती है, हम 21 दिन का, उसका 20 दिन का हम बताते हैं कि आपको लेना चाहिए। 20 दिन की औषधि का मूल्य है 250 से 300 रुपया। तो 250-300 रुपये में, और उसका परिणाम क्या है कि यदि उसको हम एसिम्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट तक लेते हैं तो जनरली पेशेंट सीवियर कैटेगरी में नहीं जाते। वो स्टैंडर्ड केयर के साथ भी ले सकते हैं और स्टैंड अलोन भी ले सकते हैं। और हमारे पास लार्ज स्टडी का डाटा है, और प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव के लिए गिलोय ज़्यादा अच्छा है, अश्वगंधा ज़्यादा अच्छा है, कंपैरिजन भी हमारे पास है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि ये औषधियाँ ऐसी रोबस्ट स्टडी के बाद बाहर आई है कि उसको हम बहुत आगे बड़े स्तर पर लेके जा सकते हैं। दैट इज द possibility and opportunity. And it would increase India's GDP, Absolutely. it would increase India's employment, Absolutely. and it would give our Kisan the impetus Yes, and encouragement yes. to grow and develop yes. these जड़ी बूटीज। Yes. पर अगर किसान की बात करें सर, तो उसकी सप्लाई के लिए आपने क्या सोचा है, so that he is able to बहुत supply? सारा काम हुआ है निधि जी। क्या हुआ है कि हमारे पास एक वर्टिकल है, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, 2000 से अस्तित्व में है। हमने जैसे ही ये डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, वी केप्ट ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, तो हमने इसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का सोचा, और फार्मर्स को उसकी पूरी प्राइस मिले और वो भी उसको कल्टीवेट करना शुरू करें। तो अभी जैसे अश्वगंधा का रकबा पिछले 1 साल में 5 गुना हुआ। फॉर एग्जांपल, अश्वगंधा की जो प्राइस है वो 250 रुपया थी, वो 550 रुपया हुई। तुलसी जो 30 रुपये मिलती थी वो अभी 130 में मिलती है। गिलोय भी लगभग 18-20 रुपये मिलती थी, वो 65 रुपये मिलती है। मोरिंगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिस पर फार्मर्स को बहुत लाभ हुआ। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि फार्मर्स को हम डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, तो जब तक वो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, मोनोटोनस क्रॉप से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये हो नहीं सकता। तो हमारा लार्जर विजन क्या है कि न केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, न केवल एक्सपोर्ट, बट नीचे तक ये ट्रांसमिट हो, कॉमर्स जो बड़ा है, ग्रासरूट लेवल तक ट्रांसमिट हो। एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। हमने 7 इंडस्ट्री बॉडी के साथ MOU किया है। उन्होंने हमें बाईबैक गारंटी के लिए लिख करके दिया है, और यू वॉन्ट बिलीव 5 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर, प्री ऑर्डर उन्होंने दिया है कि हमें ये चीज़ें 5 लाख मेट्रिक टन चाहिए, आप हमें हेल्प करिए।
Hmm. this is the kind of buzz, this is the kind of demand, and we are working on it. Absolutely, and immunity is the buzzword. पर यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, बेहतर जीवन के लिए सही खाना भी ज़रूरी है, and in these times it is important to eat right. So how much is Ayush Ministry stressing on Indian herbs and Indian food habits that is, you know, also important to this trajectory? For example, millets, that is the important food that all of us need to have, and that is a traditional food of India. So millet की खेती भी ज़्यादा बढ़े और इसी तरह का खाना हम लोग ग्रहण करें या खाएं. On lifestyle diseases, जैसे आपने डायबिटीज़ पे बहुत काम किया, and obesity, these kind of diseases are caused by wrong eating. So the pandemic has also taught us a lesson to eat right. What would you like to say to this as far as the? मैं इसमें कुछ अच्छी जानकारी देना चाहूँगा. आपने जो कहा उसमें देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट. हमारी फूड डाइवर्सिटी जो है वही हम लोगों को न्यूट्रिशन देती है. हम WCD मिनिस्ट्री के साथ पोषण अभियान के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बहुत इंटेंसली काम कर रहे हैं, और हमने ऐसे ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज रीजन वाइज आइडेंटिफाई करी है कि कौन से रीजन में कौन सा फूड लेना चाहिए, इंक्लूडिंग मिलेट्स एंड सो मेनी अदर वेजिटेबल्स रागी, ज्वार, दैट वी फॉरगॉट. Yes. इन एडिशन टू मिलेट्स हमारे पास इतने सारे एविडेंसेस है कि पर्टिकुलर इंटरवेंशन एनीमिया को हेल्प करता है. पर्टिकुलर इंटरवेंशन एनीमिया मुक्त भारत तो हो ही रहा है. हाँ, पर्टिकुलर इंटरवेंशन प्रोटीन प्रोवाइड करता है जी. विदाउट स्पेंडिंग मनी फूड में ही. ऐसे हम ईट राइट मूवमेंट जो FSS है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम क्या चाहते हैं कि आयुर्वेद तो लोग खूब जानते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके साथ हम इंडस्ट्री को भी साथ में लाएं और अपनी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, अपना जो ओरिजिनल फूड है उसको हम एक पर कॉमर्स में भी कन्वर्ट करें. देन इट विल बी सर्वाइव. तो इसको भी कर रहे हैं, आयुर्वेद आहार भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के साथ भी काम कर रहे हैं, और फिर साथ साथ में उस पर हम रिसर्च भी कर रहे हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ मिलकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं. और कुल मिलाकर के हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा एक पूरा एक सेक्टर है जिसमें हम प्रिवेंटिव मेडिसिन का, हमारे बच्चे जो साल भर में 58,000 स्टूडेंट्स आयुष सेक्टर में आते हैं, 58,000 स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं. तो हम क्या करते हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम पब्लिक गुड में लगाएं. जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इट इज़ वेरी यूनिक कि माइटी ने एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया पूरे देश में, 5 लाख से ज़्यादा CSC है. उनके साथ मिलकर के हम लोग ऐसा एक इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि वो CSC में हम एक टेलीमेडिसिन के माध्यम से आयुष प्रैक्टिशनर जो है वो गांव वालों के लिए मदद में आए. उनको कैसे स्वस्थ रहना, कैसे उनको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज में से कैसे कर सकते हैं. सो इट्स ए मल्टीप्रोंग अप्रोच है ना. उसमें हम नेशनल मेडिसिन प्लांट को भी हम साथ में जोड़ रहे हैं और उसमें ऐसा इकोसिस्टम बनाए बेस्ड ऑन द IT सॉल्यूशंस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाइवर्सिफाइड क्रॉप के लिए प्रोत्साहित करें. आपने 2-3 बार मोरिंगा का नाम लिया. मोरिंगा इज़ बिकमिंग सो प्रेशियस हर्ब, उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना ज़्यादा है. हमने क्या किया है, ई-चरक करके एक प्लेटफॉर्म बनाया. इट इज़ ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है. पिछले 2 साल में ई-चरक प्लेटफॉर्म 350% का ग्रोथ हुआ उसका. व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म इज़, फार्मर्स भी उस प्लेटफॉर्म पर है, उनके पास कोई चीज़ है, सफ़ेद मूसली फॉर एग्जांपल, उनके पास गिलोय है, मेरे पास 10 टन गिलो है, तो उस पर वो पोस्ट कर सकते हैं. और ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे कैन कनेक्ट देयर एंड दे कैन नेगोशिएट. उनको कन्वर्जिंग बेसिकली ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशनल, उनको फेयर प्राइस एकेडमिया, होल लॉट. लाइक यू सो टू स्केल अप, जो हम कहते हैं उसको स्केल अप करने का यही तरीका है कि आप मल्टीप्रोंग अप्रोच से काम करें तो चीजें स्केल अप होती है. दैट इज and get all the stakeholders on board. Board. Yes. Absolutely. Sir, you just told us about FSSAI. तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ काम दूध पे भी हो रहा है, मिल्क फोर्टिफिकेशन, ऑयल फोर्टिफिकेशन, इस तरह के भी बहुत काम हो रहे हैं जिसमें जानकारी होनी चाहिए जो खरीद रहा है कंज्यूमर कि किस तरह का पैकेज लेना है. स्ट्रीट वेंडर्स पे भी वो लोग काम कर रहे हैं. मगर यहाँ मिल्क बेस्ड प्रॉब्लम्स आजकल भारत में बहुत देखी जा रही हैं. People are developing, resistance to milk, and it is leading to a leaky gut. So, what are the endeavors that Ayush Ministry is having? हम जब दूध की बात करते हैं तो ओरिजिनली मिल्क, वी आर द लेक्टो वेजिटेरियन पीपल बाय एंड लार्ज. तो लेक्टो वेजिटेरियन पीपल यदि दूध नहीं लेंगे, दही नहीं लेंगे, छाछ नहीं लेंगे तो उनका काम चलेगा नहीं, बिकॉज लार्जली वी आर वेजिटेरियंस. Even if somebody takes non-vegetarian food, they don't eat every day. They don't take meat every day. Largely vegetarian का मतलब ये है कि हम अधिकतर वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं. We have no option but to stay lacto-vegetarian. Yes. तो काम तो क्या अप्रोच है जो FSSAI बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं.
टू एंश्योर क्वालिटीज़ ऑफ द मिल्क प्रिपरेशंस। क्वालिटी में हम जानते हैं कि लोग उसमें गड़बड़ करते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं, या फिर वो हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं एनिमल को, गायों को या भैंस को, ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े, और इस प्रकार की चीज़ें होती है। उस पर बहुत इफेक्टिव कंट्रोल का काम चल रहा है। आई एम अवेयर अबाउट दैट। एनिमल हस्बेंड्री पे इस पर काम कर रहे हैं। साथ साथ में क्वालिटी इंश्योर करने के साथ साथ ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा आजकल वो मूवमेंट चल पड़ा है। अपना सिक्किम स्टेट इज फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक हो रहे हैं। स्टेट ऑफ सिक्किम इज फुल्ली ऑर्गेनिक। अभी लद्दाख अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने सिक्किम के साथ टाइप किया है। दे हैव कमिटेड कि अगले 5 साल में हम भी पूरा ऑर्गेनिक हो जाएंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग। और मिल्क प्रिपरेशंस की क्वालिटी इंश्योर करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी जो अभी आती है। लोग क्यों एलर्जिक हो रहे हैं? क्योंकि मिल्क की जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ थी वो इंश्योर नहीं हो पा रही है। इन प्लेस ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द मिल्क, इट इज़ बेटर टू इंश्योर द क्वालिटी मिल्क। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एब्सोल्युटली। बच्चों की बात आपने की सर, तो आजकल देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, खेल नहीं पा रहे, कूद नहीं पा रहे। सो हियर व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय यू टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट द ट्रेडिशनल वेलनेस and its aspects, because it's very important for them to imbibe this culture? जैसे हमारे 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी कमिंग अप, 4,500 तो आ गए हैं। उसमें हमारा एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है कि वी विल वर्क विद द स्कूल्स। तो स्कूल में जा कर के उनको इसके बारे में बताना, फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम एक बहुत बड़े स्तर पर सेंसिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। स्कूल में छोटे छोटे मॉड्यूल बना करके, अभी इंडिया एट 75 में एक हमारा एक बहुत बड़ा गोल है। 75,000 स्कूल में हम पहुंचेंगे और वहाँ उनको 2 घंटे एक मॉड्यूल देंगे स्कूल चिल्ड्रन को। इट विल बी इंटरेक्टिव। जा कर के कुछ बोल के आए, वो वन वे नहीं है। तो एंड देन वी विल गिव देम सर्टिफिकेट, थोड़ा इवेल्यूशन करेंगे, एक सर्टिफिकेट भी देंगे। इट्स ए बिग सेंसिटाइजेशन। At the same time, we are trying to get this Ayush intervention as a knowledge into the school curricula and the higher secondary curricula. तो बहुत सारे मल्टीपल काम हो रहे हैं जिसमें आयुष का जो एक लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड देन पीपल अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इट। जैसे हम जानते हैं कि आयुर्वेद और योग, दीज आर द 2 डोमेन विच इज हैविंग लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर वैल्यू। मतलब सॉफ्ट पावर का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे कंट्री में जा कर के इंक्लूड करेंगे, बट थ्रू द नॉलेज, dissemination of knowledge, these are the powers of our country, which is a positive in perspective, which is helping to the larger community of the world. तो ये जो हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसमें आयुर्वेद और योग, these are the 2 things which can help the people of the all over the world. तो ये सब हम from children to the community to the country, people of our country, to the global people, and adding commerce to it and adding services to it. That is what we are doing, and establishing evidences at the same time. And for a healthier India, what is that last vision or research university that you would like to establish? Tell us about that. Also, my question to you, sir, is that जैसे आधार कार्ड होता है सबका, एक हेल्थ कार्ड भी होना चाहिए, एक स्वस्थ नए भारत का एक स्वस्थ कार्ड भी होना चाहिए जिसमें सब कुछ आना चाहिए। हम देखो, एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग एक साथ ये काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों पार्लियामेंट ने हमारे एक इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने के लिए एक्ट पास किया। भारत सरकार ने एक्ट के द्वारा वहाँ जो इंस्टीट्यूट है उस कैंपस के अंदर दूसरे इंस्टीट्यूट्स को टेक ओवर करके एक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, उस संस्था को बना के उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया। तो इट हैज़ हैपेंड। फिर जयपुर में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसको अपग्रेड करके उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया। एंड देर आर सो मेनी सच थिंग्स आर हैपनिंग इन अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। एट द सेम टाइम हम डिजिटल इंडिया मिशन के साथ मिलकर काम करें, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर काम करें। मैंने आपको आयुष ग्रिड का बताया। सो आयुष ग्रिड इज कन्वर्जिंग विथ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इनटू हैविंग इनपुट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई आयुर्वेद में एक प्रकृति सिद्धांत है, आप जानते होंगे कि सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, उसके बेसिस पर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक व्यक्ति के लिए विशेषज्ञता के अनुसार कि उनकी क्या विशेषता है, वो उनको कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खाना खाना चाहिए, किस प्रकार के व्यायाम करना चाहिए, कितना घंटा निंद्रा लेनी चाहिए, ये सब है। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपना जो हेल्थ कार्ड सबका बनेगा, इट इज़ ए पायलट प्रोजेक्ट है, अभी तो चल रहा है। तो हेल्थ कार्ड के अंदर प्रकृति की इन एडिशन टू रेगुलर इंफॉर्मेशन लाइक वैक्सीन है या उनको डिसीज का हिस्ट्री है, उसके साथ साथ प्रकृति भी आ जाए। तो हमने एक राष्ट्रीय प्रकृति परीक्षा कार्यक्रम रिसर्च किया है, अभी पायलट कर रहे हैं, बट वी आर श्योर कि उस पर बहुत सारे एविडेंसेस आए हैं। एक एविडेंस की बात करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा
यहाँ पर दिल्ली में IGI भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, बिल्कुल। CSIR का है। उनके पास हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है आयुष मिनिस्ट्री का। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रनिंग ए 3 सूत्र प्रोग्राम और आयुर जीनोमिक्स इन विच प्रकृति को हम जीनोमिक्स के लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पब्लिकेशंस। वी फाउंड कि जो हम वात पित्त कफ प्रकृति की बात करते हैं, वो वात पित्त कफ प्रकृति के जेनेटिक ट्रेट भी मिलते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज कि हम कैसे वात पित्त कफ प्रकृति को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस। यू बीन एन ऑथर ऑफ ग्रेट स्टैंडिंग सर, आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, कुड यू मेंशन दैट? एक्चुअली मैंने 2 पुस्तक लिखी है। एक तो सबके लिए है, जो द टाइटल इज बिगिनर्स गाइड ऑफ आयुर्वेदा। दूसरी लिखी है वो अतत्व कंसेप्ट ऑफ अतत्वाभिनिवेश इन आयुर्वेदा। इट इज़ बेसिकली फॉर द स्कॉलर्स हु इज स्टडिंग साइकियाट्री, एस्पेक्ट्स ऑफ साइकियाट्री इन आयुर्वेदा। लेकिन ये सब जो मेरी ग्रोथ हुई है, आई वुड लाइक टू मेंशन ऑनरेबल भारत रत्न नानाजी देशमुख। मैंने मेरा कैरियर प्रारंभ किया तो उनके साथ किया है। मैं चित्रकूट में बहुत वर्षों रहा। आपको पता होगा कि नानाजी देशमुख चित्रकूट में रहे। उन्होंने वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी और वहाँ एक टाटास के असिस्टेंट से एक आरोग्य धाम करके JRD टाटा फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद करके उसको उन्होंने बनाया। मैं प्रारंभ से उस यूनिवर्सिटी में भी उनके साथ जुड़ा रहा। बाद में JRD टाटा फाउंडेशन में भी उनके साथ काम किया मैंने एज ए डायरेक्टर रिसर्च। वो फाउंडेशन जो है वो मुझे आगे तक काम में आया, क्योंकि नाना जी के साथ काम करना इट्स ए प्रिविलेज फॉर द लाइफ। भारत रत्न बने उन्होंने, नमन है उनको इस मंच से सर। और मैं उनके साथ बहुत वर्षों रहा और मुझे उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि आप कोई भी काम सोचो तो बड़ा सोचो और फिर उसको पूरा करने तक उसके पीछे जुटे रहो, तब जा कर के आप काम कर सकते हो। तो दैट इज़ द लेसन विच आई लर्नड इन माई बिगिनिंग ऑफ माई कैरियर। और उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने में मुझे सहायता करी। Absolutely, and I think the order of the day is personalized medicine. And on that note, absolutely. Many thanks for joining us today, sir. More power to you and to your ministry. Once again, thank you. Namaskar.